very prominent things that nowadays sadhak devotees they get confused over Patuk Bhairav, Kal Bhairav, Mahakal Bhairav, Asht Bhairav, and 52 Bhairavs or 62 Bhairavs that they are shielding to the all 52 Shakti Peeths throughout the country wherever Shakti Lord Durga, this Sati body was destroyed or kept this laid down. So, only in that these Bhairavs, Batuk Bhairav and Kal Bhairavs are the form of Lord Shiva. Others are not directly form of the Lord Shiva. Batuk Bhairav's all roop of Lord Shiva already I explained earlier. So no need to repeat further that this episode or this story. Kal Bhairav, very this fierce nature, very say this Kal Mahakal, that Bhairav itself is the means the Bhayankar, Bhay, Virat. So Kal Bhairav, one times what happened, Lord Brahma and Vishnu, they were fighting each other, who is the superior, कौन श्रेष्ठ है. तो Brahma asked me, I am superior. This Vishnu forced me, I am superior. Then Lord Shiva came there and he made one lingam, this stambh, very big stambh that like Shivling you can say or stambha, whatever you may say. Then he asked both of them, you find this stambha Adi and Anant, and those who will find, those will tell this correctly, I will tell him or I will be declared as a superior among both of you. So Vishnu went to the Patal and he was not able to find it, whether it is a end in the Patal, and he came down, he surrendered in front of Lord Shiva. बोला मुझे नहीं मिला कहाँ पर इसका. Lord Brahma in the Akash Gaman, he was just going the sky, and at the top there was a Ketaki flower, Ketaki full was there, and he asked Ketaki flower that now I see the top of this lingam, this is stambha, so you are the witness, and now that I am the winner. Then Ketaki asked what I will get benefit if I will tell this thing to the Lord Shiva. Brahma said, I will give offer this and this like that. Ketaki agreed, and then Brahma came down and he said, I found and she is the witness, Ketaki flower is the witness. And then after that, then immediately Brahma told that I am the superior based on this finding Adi points, top points. So immediately Lord Shiva he just got annoyed like thunder and bilkul very much angry. And first of all उन्होंने केतकी फूल को श्राप दे दिया, and after that she will not offer to any god for puja. That Ketaki fool, one story, one this thing there. And then immediately he just burnt and burnt, and then from his these things, eyes and third eyes, and this fierce Mahakal, that he presented Mahakal Bhairav, Mahakal. And immediately just he asked Mahakal, that Kal Bhairav, that Kal, to kill the fifth head of the Brahma. फिफ्थ हेड उनका जो है जस्ट सिंबल ऑफ द घमंड, उनको अहंकार हो गया था मैं सबसे सुपीरियर हूँ, आई एम द सुपीरियर, ही गॉट दैट प्राइड एंड दिस इज ही गॉट द दिस थिंग. सो महाकाल, एंड इफ लॉर्ड शिव वांटेड टू ही कैन किल द ब्रह्मा फिफ्थ हेड, बट ही डजंट वांट टू किल द ब्रह्मा हेड. इफ ही किल्स हिमसेल्फ ही विल हैव टू सफर एज ए ब्रह्म हत्या. ब्रह्मा जी ब्रह्म का हत्या उनको लग जाएगा. So what he asked that Kala Bhairav that he kill the fifth head of the Brahma, and immediately he cut the fifth head of Brahma and put us in this उंगली में से लेकर के, और उसके बाद the moment ब्रह्मा का अहंकार खत्म हो गया, ब्रह्मा also melted down, शांत हो गए, और उनके एक सर को फिफ्थ हेड को उनको कट कर दिया, और वो शिव जी के फिर स्वरूप भयंकर रूप जो है काल भैरव हो गए. After that, now Kal Bhairav, how he will get sin from this
ब्रह्म हत्या, काल भैरव ने हत्या किया है, ब्रह्मा जी के सर को काटा है. So that Lord Shiva tells him then roam over the पृथ्वी का परिक्रमा वाला, roam over the globe or earth and where this ब्रह्मा सिर जो है, फिफ्थ हेड ऑफ ब्रह्मा जो है, ये तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा, इट विल fall down from your hand, that place you reside, you stay, and that will be your permanent stay place further, and you will be removed from this sin, or you will be rid away from this sin of killing ब्रह्म हत्या. सो काल जो है वो काल भैरव, ही वॉज रोमिंग अहेड ऑफ द टाइम. काल, दैट्स व्हाई काल भैरव, काल मीन्स टाइम. सो ही इज रोमिंग अराउंड द अर्थ एंड ग्लोब एंड रिचिंग, अल्टीमेटली ही रीच टू द काशी इन 12 ईयर. 12 साल लगे उनको, 12 साल. वो तब भी वो काशी समय से पहले आ गए. ही रीच हियर बिफोर टाइम. सो द मोमेंट ही केम टू द काशी, उनके ये नाखून से वो हेड जो है गिर गया. वहीं जो यह काशी वो है काल भैरव, तो वहीं वो स्थापित हो गए काल भैरव. और फिर शंकर जी ने उनको वरदान दिया, यहाँ से तुम काशी मेरे काशी वास के काशी कोतवाल आप काल भैरव कहलाएंगे. एंड फ्रॉम दैट डेट काशी का जो भी है डीड से, यहाँ यमराज का वो नहीं चलता है वही खाता, यहाँ काल भैरव काशी कोतवाल का चलता है वही खाता. पूरा एवरीथिंग आप पाप पुण्य जो भी किए हैं, झूठ सच जो भी कर रहे हैं, सब वही खाता बाबा काल भैरव पूरा उसको बराबर करते हैं. दिस इज द स्टोरी ऑफ द काल भैरव. एंड फ्रॉम दैट टाइम, एंड अगर इफ एनी भैरव अमंग ऑल भैरव्स, 52 भैरव्स एंड बटुक भैरव एंड दिस काल भैरव इज द मोस्ट फियर्स नेचर, पावरफुल दिस फेस एंड दिस थिंग सुपर नेचुरल गिवर पावर एंड दिस थिंग्स यू कैन सी एंड डिस्ट्रॉय द डेथ, डिस्ट्रक्शन ऑफ द दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग काल भैरव. नाउ बटुक भैरव ऑलरेडी सबसे सौम्य स्वरूप हैं. ऑलरेडी आई एक्सप्लेन्ड यू बाल रूप, लेस देन 8 ईयर्स ऑफ चाइल्ड, 5 साल 6 साल बालक, और मैं ऑलरेडी उसकी स्टोरी पहले बता चुका हूँ. देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग फर्दर अबाउट द बटुक भैरव. नाउ कम टू द पॉइंट अष्ट भैरव. अष्ट भैरव इज असितांग भैरव, रूर भैरव, चंड भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव. अष्ट भैरव, अष्ट भैरव जो है ये 8 दिशाएं, वी आर हैविंग ना 4 दिशाएं, बट जो दोज हु आर अवेयर ऑफ वास्तुशास्त्र, ईशान कोण, आग्नेय कोण जिसे होता है, तो 8 दिशाएं के 8 दिशाओं के मालिक ये अष्ट भैरव है. अष्ट भैरव आल्सो डिपिक्ट्स द अष्टलक्ष्मी. अष्टलक्ष्मी के रक्षक या अष्टलक्ष्मी की उनको शील्ड करने ये अष्ट भैरव करते हैं. जैसे 52 सिद्धपीठ का है, ऐसे अष्टलक्ष्मी के अष्ट भैरव. इसमें जो हमारा आदि भैरव है, आदि भैरव जो हमारा बटुक भैरव मंदिर में, जो मेरे फादर वहीं और मेरे फोर फादर वहीं साधना किए हैं, वहीं से पूरा डेली ज़्यादा तंत्र साधना उसी मंदिर में होता है, उसको क्रोधन भैरव कहते हैं. कपाली भैरव जो है, जो यहाँ पर लाठ भैरव, बहुत बड़ा लोहे का स्तंभ बना हुआ पूरा बड़ा, औरंगजेब ने उसको तोड़ दिया था, पूरा मंदिर खुला हुआ अभी भी है, वहाँ डिस्प्यूट बगल में मस्जिद भी है, वो लाठ भैरव, उसको अष्ट भैरव में कपाली भैरव बोलते हैं. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अष्ट भैरव. अष्ट भैरव साधना, इफ़ यू डू द बटुक भैरव साधना, बटुक भैरव यंत्र में आप देखिए सब अष्ट भैरव का स्थान फिक्स है, क्षेत्रपाल दिक्पाल सब बना हुआ है. आप बटुक भैरव यंत्र करते हैं उसमें भी सब ये बना हुआ है. तो बटुक भैरव जो है साक्षात शिव के बाद रूप हैं. बटुक भैरव का पूजन आप घर पे कर सकते हैं. नॉर्मली आई एम टेलिंग यू, ऐसा देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. काल भैरव पूजन नॉर्मली पीपल डू नॉट परफॉर्म एट होम. काल भैरव पूजन they used to go and do in the temple, whether it is Kal Bhairav Ujjain or Kal Bhairav Kashi or anywhere Kal Bhairav. Kal, you see the Kal Bhairav, these things, these are cremation places, their house, their home. They are the god of destroy these things. मतलब मृत्यु को भी वो कर्म से पीछे कर सकते हैं, वो डेड बॉडी को भी जिंदा कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं कि आप घर पे. हाँ, बटुक भैरव के पूजन सभी लोग जो भी गृहस्थ में है, जो डेली पूजा पद्धति है, बहुत शांत सौम्य देवता हैं. एंड बटुक भैरव, यू नो, सिंस ही इज द बालक लेस देन 8 years, he can be happy, you can make him happy very by offering 5 rupees chocolate toffee biscuit also, because he is the balak. So इस कलयुग में सबसे ज़्यादा आसान है
इसी देवता को खुश करना, पूजा करना बटुक भैरव को। ऑफ कोर्स बटुक भैरव की पूजा में आपका भाव, इमोशंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना इमोशंस के बालक खुश नहीं होगा। आप बालक घर में रो रहा है, आप उसको बिल्कुल ये करके, आप जानते जब तक इमोशंस है तो बालक शांत नहीं कर सकते हैं। इफ ही इज वीपिंग, ही इज क्राइंग, ही इज शाउटिंग, but if you develop emotions and you offer a 1 rupees item, any item, he will feel happy and he will simply laugh. Same logic, same principle apply to बाबा बटुक भैरव। और ये मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, अपने फादर के समय में। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा से रंक बनते देखा हूँ और रंक से राजा दोनों देखा हूँ। इसलिए सब साधना, सब कुछ आप करिए, लेकिन हर साधना के पीछे आप ये मत सोचिए कि मैं आज बिल्कुल रंग हूँ तो कल को राजा बन जाऊंगा, हाँ, या राजा से आपका नाम बिल्कुल नीचे चले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कंटिन्यूसली, आप श्रद्धा भाव से, डिवोशन, रिवरेंस से आप पूजा पाठ करिए बटुक बाबा का, आपकी सब मनोकामना पूर्ण होगी। सब्जेक्ट यू आर इनोसेंट। अगर आप ये सोच करके पूजा कर रहे हैं कि मुझे किसी का अहित करना है, आप टेम्परेरीली तंत्र साधना में आप किसी का अहित कर सकते हैं, बट विद इन ए 5 ईयर 10 ईयर वो साइकिल रिबाउंस होकर के आपका अहित करेगा। ये भी मैं अपने लाइफ में देखा हूँ। मेरे फादर के समय में मेरे फादर ने एक इसी तरह से किसी जजमान का, किसी भक्त का पूजा किया था, और ये बात है 77-78 का, और उसका पूजा किया था मेरे फादर ने। सब कुछ वो जो चाह रहा था हो गया, बट दैट वाज अगेंस्ट नेचर, अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर। बट व्हाट वाज द फॉल आउट, व्हाट वाज द फॉल आउट ऑफ दैट? उसका पूजा होने के बाद माय फादर सिंपली स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर एंड ही फॉल डाउन, क्योंकि वो किसी को छोड़ता नहीं है। दो ही वॉज ए वेरी बिग साधक, तांत्रिक, अवधूत भगवान राम और किनाराम सब जगह लोग जाते आते रहे, पूरा सबका होता रहे। लोग को मौनी बाबा एक बहुत बड़े तांत्रिक थे, उनसे बात कि यहाँ पर पूरा पंचमकार में तंत्र साधना में एक से एक उनका जो होता है शास्त्रार्थ परंपरा जो आप लोग बोलते हैं, उसमें विद्वत परिषद में इस तरह से तंत्र परंपरा में देखा हूँ। लेकिन नेचर के खिलाफ आप कुछ भी करेंगे, यू हैव टू पे इट, यू हैव टू रीपे इट। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप जान लीजिए। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है, जो डिवोटी, जो गृहस्थ के लोग हैं, जो आप जैसे पूछ रहे हैं, बहुत से पूछते हैं अष्टमी को क्या करना चाहिए, अमावस्या क्या करना चाहिए, पूर्णमासी क्या करना चाहिए। हाँ, बटुक भैरव की पूजा में सबसे ज़्यादा महत्व कृष्ण पक्ष के अष्टमी का है। उसके बाद हर रविवार को है, मंगलवार का दिन भी शुभ माना जाता है। और अगर आपका कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप 43 दिन 21 दिन का ये जिस तरह का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें कोशिश कीजिए संध्या में, और रविवार के दिन आप पूजा पाठ भैरव का कर सकते हैं। बाकी आप जो भी जातक हैं, जो भी साधक हैं, जैसे आप घर में डेली सुबह सभी लोग होते हैं, अपना सुबह उठ करके टाइम से अपना जो भी करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, वो पूजा भैरव जी का कर सकते हैं, बटुक भैरव का, उसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जैसे पंचदेव हम लोग करते हैं, दुर्गा जी का, शंकर जी का, विष्णु जी का, गणेश जी का, और इसका अपने पंचदेव करते हैं ना सुबह सुबह, उसके साथ आप इनका भी बात है, बटुक जी का भी आप 2 मिनट 3 मिनट आप पूजा पाठ करके अपना अपने ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए, स्टूडेंट पढ़ाई के लिए, कुछ भी करने के लिए आप निकल सकते हैं घर से। सब आपको अब कोई भी प्रॉब्लम आपको होगा तो आप उसको बड़े कूलली फेस कर सकेंगे। अगर आपका एक्सीडेंट भी भयंकर होना है, लिखा है आपका हॉरोस्कोप में ऐसा होना, तो एक्सीडेंट छोटा सा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा। ये सब मैं देखा हूँ। अभी 3 इयर्स या 4 इयर्स पहले का आई विल टेल यू वन स्टोरी। शाम को 5 बज रहा था, मैं मंदिर में बाबा का श्रृंगार कर रहा था, सुबह शाम बाबा का श्रृंगार हो रहा था। एंड आई विल नॉट टेल द पर्सन, उसके बनारस में मोर देन 30 ब्रांड के बिग साड़ी शोरूम है, मोर देन 30 प्लेसेस। इट इज़ नॉट गुड टू रिवील हिज नेम, एंड दैट वाज बिग पर्सन्स। और उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने या कोई भी होते होंगे अपना जो उनको दिखाते कुंडली उंडली कि इसको बहुत भयंकर, इसके पता आने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है या कुछ होने वाला है। एंड जस्ट वो पूजा दर्शन कर रहा था मंदिर में, मैं श्रृंगार कर रहा था और बिल्कुल फिट फाट बैठ के पूजा किया।
मैं उसको आशीर्वाद दिया, विभूति लगाया उसको और पैर छुआ मेरा, बाबा का अंदर पूजा करके, एंड ही स्टार्टेड मेकिंग परिक्रमा। 8 परिक्रमा उसमें लगाने को होता है। आप यू विल शॉक टू नो ही एंड हिज फादर, वो 14 साल 15 साल का बेटा था, बहुत सुंदर बहुत प्यारा बच्चा, अभी भी मतलब है और वो बहुत ही मतलब वो मेरे सामने की बात है, और वो परिक्रमा लगा रहा था, और 3rd परिक्रमा के बाद परिक्रमा लगाते लगाते वो बेटा गिर गया वहीं पर, और गिर गया और ऐसा गिरा कि चुप नहीं कि उसको गोद में उसके फादर को उठाना पड़ा, गोद में लेके फिर दोबारा मंदिर मेरे पास आए, और मैं उसको जैसे जो झाड़ फूक किया है, मतलब जितना ज़्यादा मुझे पता, बाबा आशीर्वाद दिया, वो जलल छिड़का, उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा के ले गए, और 2 साल तक उसका बॉम्बे में क्या क्या ऑपरेशन हुआ, आई डोंट नो ऑल द डिटेल्स, हिज फादर यूज्ड टू कम एंड ही टेल्स नाउ इज ऑल राइट परफेक्ट, एंड in one of the his shop I met him several times, and again every Sunday he used to come. Purpose of telling me this incidents or this real happening in presence of me, that he was knowing, his father was knowing, his astrologer was knowing that he will meet and big accident, he may lose his life, he may lost his life, but ही बाई डूइंग द पूजा बटुक भैरव, जो उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, वो छोटा सा हो करके बाबा के मंदिर में ही गिर करके वो जाकर उसका ऑपरेशन हुआ, और विद इन 1 ईयर इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। मेरा ये कहानी बताने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को छोटा करो, किसी बड़ा करो, या बहुत बड़ा मिरेकल है। मेरा कहने का मतलब यही इतना यहाँ पर है कि जो मैं अपनी आंखों से देखा हूँ बाबा का चमत्कार, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप दुनिया भर के किसी भी जितने इन्फ्लुएंसर घूम रहे हैं, आप ये कीजिए वो कीजिए, मैं किसी को कम नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन किसी चीज़ के पीछे 100% भागिए मत। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कहने से मेरे ही पीछे भागिए, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैं पिछले 50 साल से अपनी आंखों से देखा हूँ, और उसके पहले का जो मैं अपने फादर और 4 फादर से सुना हूँ, इस मंदिर के चमत्कार, इस मंदिर में क्या क्या चीज़ ऐसे हुए हैं। इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कभी आपको और डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।